اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں، میں آپ آئی ہوئی تمام لوگوں کی نہایت مشکور ہوں۔ بہت لمبے گیپ کے بعد سسٹر زبیدہ ہمارے ساتھ ہیں، فاروق بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں۔ آج یاسر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جتنے بھی گیپ کے بعد آئے ہیں، ہم آپ سب کو چرچ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انکل ریاض آج بڑا خوبصورت گیت گا رہے تھے اور آج وہ یقیناً کلام میں بھی اس کا ذکر ہے اور روح القدس ہمیشہ وہی پرستش کرواتا ہے جس کا کلام کے ساتھ تعلق ہے۔ سو انکل ریاض کو آپ سب کو بھرپور تالیوں کے ساتھ خوش آمدید۔ اور میری کی کزن بھی ہمارے ساتھ ہیں آج آل دا وے فرام فیصل آباد، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم سب جب خدا کے حضور آتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، ہمیں کلام کی برکت سے نوازتا ہے۔ لاسٹ سنڈے اور اس سے بھی پچھلے سنڈے میں نے اناؤنس کیا کہ خدا کے روح نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ ہم تمام بہنیں روزہ میں ٹھہرے اور ایک خاص مقصد کے لیے ہم روزے میں ٹھہرے، اور بہت سی بہنوں نے اس روزے میں ہمیں جوائن کیا اور ہم نے عبادت بھی کی۔ لیکن جب میں نے اناؤنس کیا تو میرے دل میں ایک سوال تھا کہ اگر ہماری بہنیں 50 ہیں یا 60 ہیں یا 40 ہیں، اگر یہ سب روزہ رکھ کر میرے ساتھ یہاں پہ روزے میں ٹھہرتے ہیں، دعا میں ٹھہرتے ہیں، تو ان کا روزہ کھلوانے کے لیے میرے پاس کچھ ہونا ضروری ہے۔ اینڈ آنیسٹلی میرے پاس کچھ نہیں تھا اور میں سوچ رہی تھی، میں نے فیصلہ تو لے لیا، اناؤنس بھی کر دیا ہے، خدا مجھے اتنا مہیا کرنا کہ میں اچھا ارینجمنٹ کر سکوں۔ لیکن خدا ہمیشہ ہماری سوچ سے بڑھ کر اور ہماری سوچ سے بہتر منصوبہ جات کرتا ہے۔ ہمارے درمیان سنی بھائی ہیں، اگر انہیں برا نہ لگے تو پلیز کھڑے ہو جائیں۔ سنی بھائی نے مجھے کہا کہ آمنہ باجی جو آپ بہنیں ساری روزہ رکھیں گی وہ روزہ میں کھلواؤں گا۔ تو پہلی بات میں چاہتی ہوں سنی بھائی کی صرف اس فیصلے کے لیے کیونکہ سنی بھائی نے جو فیصلہ لیا کہ یہ جو روزہ ہے وہ بہنوں کا روزہ میں کھلواؤں گا، اور جتنی بہنیں آئی تھی وہ جانتی ہیں کہ سنی بھائی نے کیسا ارینجمنٹ کیا تھا۔ 5 سے 6 ڈشز تھی جس میں اس مہنگائی کے دور میں بڑے گوشت کا بھی سالن موجود تھا، بریانی بھی تھی، چنا چاٹ تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ، اتنا سب کچھ مزے کا تھا۔ اور ہم ساری بہنیں میرے ساتھ یہ بات ڈسکس کر رہی تھی کہ ہم حیران ہیں کہ سنی بھائی نے ایک دن میں اتنا کچھ بنا کیسے لیا، اور سارا کچھ وافر مقدار میں تھا۔ اور اگر میں اتنی چیزوں کے نام لے رہی ہوں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بجٹ لگا ہوگا، کتنا خرچ ہوا ہوگا۔ اور اگر فائنینشلی حالات کی بات کریں تو میری جہاں تک آبزرویشن ہے، ہمارے چرچ میں سب سے زیادہ اس وقت اگر فائنینشلی ویک ہے تو وہ سنی بھائی، لیکن یہ جو فراق دلی کی صفت ہے یہ خدا کی طرف سے کسی کو ملتی ہے۔ میں چاہتی ہوں سنی بھائی کی اس فراق دلی کے لیے یقیناً ہمیں خدا کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تب وہ دو کرنی پڑتی ہے۔ جان پائپر کہتے ہیں خدا کے ساتھ وفاداری اور فرما برداری کے لیے آپ کو اسٹرائیو کرنا پڑتا ہے، آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ گھر کے بڑے حالات ہوں گے، بڑی ذمہ داریاں ہوں گی، لیکن ان کے باوجود خدا کے لوگوں کے لیے اور خدا کے لیے کچھ کرنا، وہ آپ کے اندر خدا کی وہ فراق دلی کا تحفہ ہے، وہ فطرت ہے جو خدا نے آپ کے اندر بخشی ہے، لیکن وہ ہم سب میں ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ صرف سنی بھائی نہیں، ہماری پوری کلیسیا میں ایسی اسپرٹ ہو، ہم سب خدا کے لیے کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ خدا کے عظیم خالق پاسٹر کرس کی میں کوٹیشن پڑھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے جب وہ لوسیفر تھا تو وہ سمجھتا تھا آسمان میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں سب سے مقرب فرشتہ ہوں، میں سارا کچھ کرتا ہوں۔ آج وہ آسمان پر نہیں ہے تو کیا آسمان پر خدا کا جلال نہیں ہے؟ خدا کا تقدس قائم ہے، خدا کا تخت قائم ہے، خدا کی حاکمیت قائم ہے، خدا کے اختیارات قائم ہیں اور خدا کی نجات کا منصوبہ بھی قائم ہے، اور ابلیس آج بھی ناکام ہے۔ اور انہوں نے اپنی اس کوٹیشن میں لکھا کہ حنانیہ سفیرہ نے جب خدا کو ہدیہ دینے کا وعدہ کیا، انہوں نے اپنی زمین بیچی اور دونوں نے اصلاح کے ساتھ اس میں سے کچھ اماؤنٹ اپنے گھر میں رکھ چھوڑی۔ تو وہ کہتے ہیں کیا پطرس اور رسول خدمت نہ کر پائے جب انہوں نے پیسے رکھ لیے تھے؟ خدمت ٹھیک بھی ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم خدا کی خدمت میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری کلیسیا ہے، گڈ لائف چرچ ہے، ہماری فیملی ہے، اور ہم سب جس طرح اسپیڈ سے گرو کر رہے ہیں، ہم سب کو بڑی ضرورت ہے ایک دوسرے کی سپورٹ کی، ایک دوسرے کو جسمانی طور پر بھی سپورٹ کرنا اور روحانی طور پر بھی سپورٹ کرنا ہے۔ جتنے بھی گلے آپ لوگ کو چرچ میں دیے گئے ہیں، جتنی فیملیز کو نہیں ملے،
काइंडली आप अपने घर में मांग कर लें, क्योंकि ये आपकी खिदमत है। और उनका मकसद ये है कि बाई चांस अगर ये अनाउंसमेंट की जाए कि गुड फ्राइडे के खाने के लिए और सनराइज सर्विस के नाश्ते के लिए इतने पैसों की जरूरत है, तो एकदम से शायद कोई भी निकाल ना पाए। तो गले देने का मकसद यह है कि आप आते जाते जब कभी आपको लगे मेरी जेब में कुछ पैसे हैं और ये मैं दे सकता हूँ, तो आप गला में डालें। और वो 100, 50, 10, 20 रुपए जब एक माह के बाद जब आप गुड फ्राइडे से एक दिन पहले हमें जमा करवाएंगे, तो एक अच्छी खासी अमाउंट होगी और हम चर्च की खिदमत को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। हमें तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी इस खिदमत में जरूर हिस्सा डालें, क्योंकि ऑलरेडी कीबोर्ड खराब होने पर खान साहब ने अनाउंस किया था कि 10,000 रुपये हम पे कर चुके हैं, चर्च ने अभी पे करने हैं 10,000 रुपया। उसके अलावा तबलों का काम है और कुछ तारों का डिस्टर्बेंस है, काफी ज्यादा चीजें हैं जो चर्च में करने वाले हैं। हमें पीछे जितनी लाइन में सोफों पे जो बैठे हैं लोग, उनको हवा नहीं लग रही, मैं उनके चेहरों से ये चीज पहचान सकती हूँ, इसलिए क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं जाती पंखों की। तो हमें 2 ब्रैकेट फैंस भी चाहिए जो वहाँ पर बहनों को हवा दे और वहाँ पर बैठे भाइयों को हवा दे सके। ब्रैकेट फैन ऐसे फैंस को कहते हैं, इसकी मुझे उर्दू नहीं आती इसलिए मैं बता दूँ। सो हमें चर्च में काफी चीजों की जरूरत है, हमें काम करना है, अपने चर्च को मजबूत करना है, और ये मैं नहीं, ये आप सब करें। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ आप ऑलरेडी इस चर्च को ऑलरेडी बहुत बिल्ड कर चुके हैं। ये चर्च इस मकाम तक अगर कलीसियाई तौर पर आया है, अगर रूहानी तौर पर आया है, अगर जिस्मानी फिजिकली चर्च ने इतना प्रोग्रेस किया है, तो इसकी वजह आप सब हैं। तो मैं चाहती हूँ एक दफा आप सब के लिए जोरदार अब हम बढ़ते हैं कुरान के जिंदा पाक कलाम की तरफ। अभी हवाला पढ़ा गया यीशु के लहू के ताल्लुक से, और मैंने कहा कल रियाज ने बड़ा खूबसूरत गीत गाया, सारे रोगा था करना हो तबीब है। आज हम यही बात उसके लहू के ताल्लुक से सीखेंगे। हमने लास्ट टाइम सीखा कि यीशु मसीह का जो लहू है, यीशु मसीह के लहू की जो कुदरत, हमने सीखा कि यीशु का जो लहू है वो पाक है। फिर हमने ये भी सीखा कि वो पाक लहू बहाया हुआ लहू है, और उस बहाए हुए लहू के वसीला से हमने निजात पाई है, हमारे गुनाहों का कफारा हुआ है। और वो बहाया हुआ लहू ना सिर्फ हमें गुनाहों से कफारा देता, हमने ये भी सीखा कि वो हमें हर तरह की फराहमी अता करता है, क्योंकि यीशु मसीह ये बात कहते हैं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और इब्ने आदम का खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। यीशु मसीह ये बात हम पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि जिस तरह खून और गोश्त मिलकर एक जिंदगी बनते हैं, इसी तरह जब यीशु मसीह का खून और गोश्त स्पिरिचुअली मानों में सिंबॉलिकली निशान तौर पर जब हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो हम जिंदगी का तजुर्बा रखते हैं, हमारे अंदर जिंदगी आती है। एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने किताब लिखी जिनका नाम है पॉल ब्रैंड, आप पढ़ सकते हैं, PDF पे आपको उनकी किताब मिल जाएगी। और अपनी किताब इन हिज इमेज में उन्होंने खून के ताल्लुक से बड़ी खास इंफॉर्मेशन शेयर की, लहू के ताल्लुक से बड़ी खास बातें बताई। उन्होंने पिछले इतवार सिर्फ एक बात पर सीखा था, और वो ये था कि उन्होंने कहा कि इंसानी जिस्म को खून की मुसलसल और मुनासिब फराहमी रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये खून ही है जो हमारे जिस्म के हर खुलिये तक खाना पहुंचाता है, इसलिए हमारे जिस्म में खून का मुनासिब और मुसलसल उसका बहाव रहना निहायत जरूरी है। और यीशु मसीह की बातों से हमने ये सीखा कि यीशु मसीह हमें ये बात बताना चाहते हैं, जिस तरह से इस जिस्मानी जिस्म को, इंसानी जिस्म को जिंदा रहने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए खून की जरूरत है, उसी तरह एक ईमानदार को जिंदा रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए यीशु की जरूरत है। यीशु मेरी आपकी जरूरत है। जिस तरह खून हमारी सारी जरूरियात को पूरा करता है, हमें एक बेहतरीन प्रोविजन देता है, हमारी हर जरूरत को मुहैया करता है, इसी तरह यीशु एक ईमानदार की मसीहियत के हर एक जरूरत की, वो जिंदगी हो या दीनदारी के मुतालिक हो, वो यीशु मसीह की पहचान में हमें अनायत की गई है। पतरस रसूल फरमाते हैं कि वो उसने हमें अनायत कर दी है। और यीशु मसीह के लहू की ताल्लुक से एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यीशु ने सिर्फ अपना आप हमारे लिए नहीं दिया, बल्कि खूबसूरत बात यह है कि उसने अपना आप हमें दिया है। वो चाहता है हम उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी से
तजुर्बा करें, हम उसकी जिंदगी को जिए, यीशु की जिंदगी हम में से नजर आए। तो हमने एक चीज सीखी कि जिस तरह से इंसानी जिस्म का जो खून है वो उसको प्रोविजन देता है, खाना मुहैया करता है, जरूरत की चीजें मुहैया करता है, वैसे ही यीशु का लहू हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। दूसरा नुक्ता जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा और वो ये है कि हमें ना सिर्फ खून के हर वक्त और मुसलसल और मुनासिब तौर पर हमारे जिस्म में रहने की जरूरत है, बल्कि वो एक और बात कहते हैं और वो ये है कि हमें खून के पाक और साफ करने की सलाहियत पर इंतजार करना भी जरूरी है। मैंने प्लीज थोड़ा सा आगे हो जाए ताकि जो पीछे आए हैं वो इजीली बैठ सकें। एक एक स्टेप प्लीज आप लोग आगे हो जाइएगा, शुक्रिया। वो कहते हैं कि अगर हमारे जिस्म में हर कुल्ली तक खून का पहुंचना जरूरी है तो हमारे दिल में ये बात होना भी जरूरी है कि हमारे बदन में जो खून है ये हमें पाक और साफ भी करता है। हमने सीखा कि वो खुलिये रेड ब्लड सेल्स, वो लाल सुर्ख खुलिये जो हमारे जिस्म के हर खुलिये तक खाना पहुंचाते हैं, उनकी दिलचस्प बात ये भी है कि जब खाना देकर वो वापस आते हैं तो उसी रेड सेल्स के अंदर आपके जिस्म की गिलाजत लेकर वापस जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम और जो कुछ आपकी जिस्म की जरूरत है वो आपके बदन की हर एक फिंगर तक, आपके पाँव तक, आपके जिस्म तक, हर एक खुलिये तक खाना लेकर आए हैं। और जब वो वापस आने लगते हैं तो वो आपके बदन से जो वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो टॉक्सिक्स है, पॉइजन, जब उन सबको लेकर के आते हैं वापस लेकर। यदि बिल्कुल ऐसे जैसे दूध वाला ट्रक आए, दूध देने के बाद आपके घर का कूड़ा उठाकर ले जाए, ये बिल्कुल ऐसे। और कितना हैरान क्यों। इसीलिए दाऊद नबी 147 ज़बूर उसकी 4वें आयत में कहता है, खुदा मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तरीके से बना। दाऊद नबी जानता है कि खुदा ने मुझे किस कदर अजीब तरीके से बनाया है। When I was in the teenage, तो मैंने अपने सब्जेक्ट्स में बायो नहीं रखा क्योंकि मैं समझती थी बायोलॉजी में कुछ बड़ी गैर मुनासिब चीजें भी पढ़ना पड़ती हैं और मैं नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन खुदा की मर्जी कुछ और थी। मैं मैथ्स के साथ थी, इंजीनियरिंग के साथ करने के बाद एफएससी मैंने मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की ट्रेनिंग की और वहाँ पे सारी बायो ही पढ़ी मैंने। और जब मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की वो बुक्स हम पढ़ते थे तो उसमें सारा कुछ हमने डिटेल में पढ़ा और मैंने ये बात जानी कि एजुकेशन में बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको खुदा की कुदरत के ज्यादा करीब है। हालेलुया। और बायोलॉजी पढ़ने से खुदा की कुदरत को देखें। हमने देखा, आपने कभी सुना हो कि अगर किसी का एक गुर्दा फेल हो जाए तो उसका दूसरा गुर्दे का साइज बड़ा हो जाता है। आप जानते हैं क्यों खुदा ने ऐसा किया है? ताकि वो गुर्दा दूसरे गुर्दे का काम भी कर सके। तो क्या आपका खुदा अमेजिंग है या नहीं? अपने खुदा के लिए एक दफा जोरदार। अब ज़बूर में भी कहता है, खुदा मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर से बना हूँ। और वो कहता है तेरे काम हैरत अंगेज है। और वो खून जो आपके बदन में खाना पहुंचाता है वही खून आपके बदन को साफ भी एक ही वक्त में कर रहा है। वो आपको खाना देकर जाता है और आपकी बॉडी में से जितने टॉक्सिन्स है, पॉइजन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपके लंग्स तक, आपके फेफड़ों को देता है ताकि वो सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दे और बाकी के जितना यूरिक एसिड है वो उसको आपकी किडनीज तक, आपके गुर्दों तक लेकर जाता है ताकि यूरिन के जरिए आपके जिस्म से यूरिक एसिड निकल जाए। कितनी खूबसूरती से वही खून जो आपको खुराक मुहैया करता है उतनी खूबसूरती के साथ वो आपके बदन को साफ भी कर रहा है। चलिए अब यीशु के लहू की तरफ आते हैं। मुकद्दस यूहन्ना अपने पहले बात की 7वें आयत के दूसरे हिस्से में कहते हैं, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। हमें वो खून जो पाक है, वो खून जो बहाया गया, वो खून जो हमें गुनाहों से कफारा देता है, वो हमें हर तरह के गुनाह से क्या करता है? पाक करता है। और ता है लिखा है, इसका मतलब ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूली आपको करता रहता है। उसने आपको पाक कर नहीं दिया, वो आपको पाक करता रहता है। एक चीज हमेशा अपने ज़हन में रखें, यीशु मसीह को कबूल करने के बाद हम रास्तबाज बन नहीं जाते, हम रास्तबाज ठहरते हैं। बड़ा फर्क है रास्तबाज बन जाने में और रास्तबाज ठहरने में। यूँ समझ लें जमानत हुई है, अभी बेकसूर साबित
नहीं हुए। हमने यीशु मसीह के कफारे को कबूल किया तो हम निजात याफ्ता ठहर गए, हम रास्तबाज ठहर गए। लेकिन जो रास्तबाज होने का अमल है उसका पाक लहू मुसलसल हमें करता है। उसके लिए एक बड़ी खूबसूरत किताब मैंने पढ़ी थी, जर्नी टू होलनेस, कामयाब की तरफ सफर। और उस सफर में अगर हमें कोई चीज सपोर्ट करती है तो वो यीशु का लहू है, जो हमें मुसलसल हमारे गुनाहों से क्या करता है, पाक करता है। और मैंने कहा कि जिस तरह जिस्मानी खून हमें खुराक भी मुहैया करता है, साथ ही साथ हमें क्या करता है, पाक भी करता है, हमारे बदन को साफ भी करता है। इसी तरह यीशु का लहू ना सिर्फ आपको हर चीज मुहैया करता है, ना सिर्फ आपको निजात देता है, बल्कि वो आपको मुसलसल पाक भी करता है। और हमने बहुत से ईमानदारों ने सिर्फ यीशु के लहू की निजात के बारे में सीखा है या जानते हैं, लेकिन हम लोग इस बात का तजर्बा नहीं रखते कि निजात पाने के बाद जब हम जिंदगी गुजारे तो उस जिंदगी में बेहतरी और रास्तबाजी को तजर्बा करने में भी उसका लहू ही हमारी मदद करता है। हमें और डॉक्टर पॉल ब्रायन ने जो किताब लिखी, उस किताब में उन्होंने बड़ा खूबसूरत बयान किया। कहते हैं अगर आप कभी तजर्बा करना चाहते हो कि आपके बदन में बहने वाला खून कितनी खूबसूरती के साथ आपको साफ करता है आपके बदन को, तो कहते हैं आप एक दिन ब्लड प्रेशर चेक करने वाला कप लें, उसको अपने बाजू पर बांधे और उसको बहुत टाइट पंप करें। अपने बाजू पे ब्लड प्रेशर कभी चेक करवाया किसी ने? कितने लोगों ने ब्लड प्रेशर चेक करवाया? कम लोगों ने करवाया। अच्छी बात है, ना करवाएं कोई खतरनाक ही नहीं होगा। सो ब्लड प्रेशर का जो कप है वो कहते हैं अपने बाजू पे आप लगाएं और उसको फुल पंप करें, इतना पंप करें कि आपकी बाजू टाइट हो जाए। उसके बाद वो कहते हैं आप हाथ में कोई प्लास्टिक का बॉल लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, उसको स्क्वीज करना शुरू करें। वो कहते हैं शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, आपको स्क्वीज करना मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा और वक्त गुजरेगा तो आपसे स्क्वीज नहीं हो पाएगा, आप अपनी वो हाथ की एक्सरसाइज वो मशक नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं थोड़ा और वक्त गुजरेगा तो आपकी बाजू में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब दर्द होना शुरू हो जाएगा तो कुछ ही देर के बाद वो दर्द इतना बढ़ेगा कि आप चीखने लगेंगे उस दर्द के साथ। वो कहते हैं जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका जो वो बाजू है जिसका खून का आपने कट ऑफ किया है, फ्लो को रोका हुआ है, उस खून में मुसलसल टॉक्सिन जहरीले मादे बन रहे हैं जो आपको तकलीफ देंगे। और वो कहते हैं जैसे ही आप वो कप खोलेंगे एकदम से आपको सुकून होगा, आपकी दर्द खत्म होगी, आपका बाजू रिलैक्स महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने खून को इजाजत दे रहे हैं कि वो गंद और वो विलासत और कार्बन डाइऑक्साइड और वो जहरीले मादे लेकर आपके उस बाजू से ले जाए और वो जा सके। और वो कहते हैं कि हम इसलिए दर्द में थे क्योंकि हमने खून के बहाव को रोका हुआ था। आज बहुत से मसीह हैं जो दर्द से करा रहे हैं। आप उनसे बात करेंगे वो लिटरली आंसुओं के साथ रोएंगे और आपको बताएंगे कि मैं किस कदर तकलीफ में हूं। क्योंकि लोगों ने अपनी जिंदगी में गुस्से को, नफरत को, बुग़्ज़ को, तकब्बुर को, हसद को इतना ज्यादा भर लिया है, इतना ज्यादा भर लिया है कि वो दर्द में है, वो तकलीफ में है, वो रोते हैं, वो चिल्लाते हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे से कोई मोहब्बत नहीं करता, मेरे फलां भाई ने, फलां बहन ने मेरे साथ ये सलूक किया, मैं बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आप जानते हैं वो क्यों इतनी तकलीफ में है? क्योंकि वो यीशु के लहू को अपने आप को साफ करने का मौका नहीं देते। वो लम्हा जब कोई ईमानदार यीशु के पाक लहू की कुदरत को अपनी रूहानी जिंदगी को पाक करने का मौका देगा, वो और ज्यादा दर्द में, तकलीफ में नहीं रहेगा। कितना जरूरी है कि हम उसके लहू से कफारा तो पा रहे हैं, लेकिन उसके लहू की फराहमी को भी तजर्बा करें, और ना सिर्फ फराहमी को, उसके लहू के पाक करने की कुदरत को भी तजर्बा करें। बाइबल मुकद्दस में हसद करना भी गुनाह है, बुग़्ज़ रखना भी गुनाह है, नफरत करना भी गुनाह है। और अगर हम चंद लम्हों के लिए सोचें तो ये गुनाह आज भी हमारी जिंदगी में, हमारे दिल में हसद भी है, बुग़्ज़ भी है, नफरत भी है, गुस्सा भी है, मायूसी भी है। और जब ये सारे गुनाह हमारी जिंदगी में है और हम यीशु के लहू को नहीं चाहते कि वो हमारी जिंदगी में सर्कुलेट करे और इस सारी गिलाजत को हमारी जिंदगी से निकाल दे, तो फिर हम हर वक्त दर्द में और तकलीफ में और तड़पते रहेंगे। और ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो निजात याफ्ता है, जो निजात याफ्ता है, बपतिस्मा याफ्ता है, नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, लेकिन चूंकि वो यीशु के लहू की क्लेंजिंग पावर को अपनी जिंदगी में नहीं लेते, तो वो बड़ी मिजरेबल और बड़ी दुखी और बड़ी तकलीफ से जिंदगी
गुजारते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु मसीह इसलिए आया कि हम सिर्फ जिंदगी ना पाए, बल्कि कौन सी जिंदगी पाएंगे? कसरत की, ऐसी जिंदगी जिसमें तकलीफ ना हो, ऐसी जिंदगी जिसमें आंसू ना हो। हम एक फतेहमंद जिंदगी गुजारे। मैंने कहा जब मैं फतेहमंद जिंदगी की बात करती हूँ तो इसका मतलब हर किसी नहीं कि आपकी जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी। इसका मतलब हर किसी नहीं कि आप कभी दुख का सामना नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आप हर वक्त दुख में नहीं रहेंगे। आप हर वक्त दुख में नहीं रहेंगे। जिंदगी का कोई एक हिस्सा जरूर आपकी प्रॉब्लम में आएगा, आपकी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, लेकिन हर वक्त आप उस हालत में नहीं रहेंगे। तो यीशु के लहू में क्लेंजिंग पावर, जैसे जिस्मानी खून साफ करता है, वैसे यीशु का लहू हमें हर तरह के गुनाह से क्या करता है? पाक करता है। और हमें उसकी उस क्लेंजिंग पावर को अपनी जिंदगी में लेना जरूरी है। आमीन। अब यीशु मसीह के अलावा कोई भी ये दावा नहीं करता है बोझ के तले थके मांदे लोगों किसके पास आओ? डॉक्टर के पास जाओ, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, किसी कारोबारी बंदे के पास जाओ। लेकिन यीशु वाहिद ऐसा लीडर है जो कहता है मेरे पास। हालेलुया। वो वाहिद ऐसा मजहबी लीडर आया दुनिया में। अगर कोई दुनिया उसको मजहबी लीडर कहे, हमारे लिए तो वो खुदा है, हम जानते हैं कि वो खुदा है, इसीलिए वो कहता है मेरे पास। और मैं आपको बता दूं दुनिया का अजीम तरीन मुबशर है यीशु, क्योंकि यीशु से जब दुनिया में आए बाकी अंबिया वगैरह या बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं उनके जब लीडर्स बोलते थे तो वो कहते क़यामत आने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है, अच्छे अमाल कर दें। तो आपको यीशु ने पता है हिकमत का आगाज कैसे किया? कहते हैं आसमान की बादशाहत आने वाली। हालेलुया। वो अपनी तालीम का आगाज एक खुशखबरी से करता है। वो से कह रहा है पार्टी शुरू होने वाली है, प्रोग्राम शुरू होने वाला है, कपड़े चेंज करें, तैयार हो, हम सबको उस बड़ी जो ज़ियाफत है हमें उसमें शामिल होना। वो आपको मौत से नहीं डरा रहा, वो आपको क़यामत से नहीं डरा रहा, वो आपको कहता है तैयारी करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक है। मैंने कहा यीशु दुनिया का सबसे बड़ा और अजीम मुबशर है जो हमारे लिए खुशखबरी लाया। और यीशु का लहू ना सिर्फ हमें मुसलसल मुहैया करता है बल्कि उसका लहू हमें पाक और साफ भी करता है। अभी जो बहन ने हवाला पढ़ा इब्रानियों 9 बाब की 11वीं आयत से पढ़ा और उसमें लिखा है यीशु रसूल फरमाते हैं और बकरों और बछड़ों का खून नहीं लेकर बल्कि अपना ही खून लेकर। मैं जब छोटी थी हमारे घर में खातम आए, उनके साथ एक भाई थे और उन्होंने गीत गाया और का यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं। और मैं हैरान हुई थी क्योंकि उन्होंने अजीब सी बात की है, यीशु के लहू को किसी बकरे के साथ कंपेयर करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जब हमारे पास कम इल्म होता है हमारे सवाल भी अजीबोगरीब होते हैं। सो अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो बजाय हम उस पर मनफी ख्यालात का इजहार करें, हमें सीखने की जरूरत है। और आज मैं सीखती हूँ तो मैं समझती हूँ एग्जैक्टली नेस्टिमल ने खूबसूरती से लिखा कि वाकई यीशु का लहू किसी बकरे या बछड़े का नहीं है, क्योंकि बनी इसराइल के गुनाहों का कफारा जो वो ज़ाहिरी तौर पर गुनाहों से कफारा लेते थे वो बकरे और बछड़े के लहू से लेते थे। और यही बात रसूल यहाँ पर वाज़ा करते हैं कि यीशु ने किसी बकरे का या किसी बछड़े का लहू लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर बाप के पास पाक मकान पर गया और हमारी अबदी खलासी कराई। एक दिन की खलासी नहीं, 2 दिन की खलासी नहीं, बल्कि उसने हमारी अबदी खलासी करवाई। और बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं अगर बैलों का खून और गाय की राख जो है वो जिस्मानी पाकीज़गी कर सकते हैं तो वो कहता है बर्रे का लहू, यीशु का जो खून है वो तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा। और मुर्दा काम वही है जो हम जिस्म में रहकर करते हैं, वो सारे क्या है? मुर्दा काम है। और रसूल ये बात वाज़ा करते हैं कि मुझे और आपको मुर्दा कामों से अगर कोई पाक कर सकता है तो वो सिर्फ बर्रे का लहू, और वो बर्रा जो खुदा का बर्रा है, जो पाक है, जो बेऐब है, वही बर्रे का लहू मुझे और आपको हर तरह के मुर्दा कामों से पाक करता है। और ऐसा नहीं है यीशु ने हमारे गुनाहों का कफारा दिया और कहा कि अब आपकी अपनी अपनी रेस है। नो, कफारा देने के बाद उसने अपना लहू आपके साथ बांटा है। वो कहता है जब तक तुम इतने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पाओ पियो तुम में जिंदगी नहीं है। और मैंने ये बात बताई थी कि खून और गोश्त पीने से मुराद ये है कि यीशु मसीह की बातों को अपनी जिंदगी में लेना, यीशु मसीह की जिंदगी को अपनी जिंदगी से जीना। हम हर रोज खुदा का शुक्र करें कि उसने हमें हमारे मुर्दा कामों से आजादी दी है और वो आप भी हमें दे रहा है।
हम उसकी शुक्रगुजारी करें कि उसने हमें ये मौका दिया है कि वो यीशु जो खुदा का इकलौता बेटा है, वो यीशु जिसने पूरी कायनात को पैदा किया, उसने सिर्फ अपना आप हमारे लिए नहीं दिया बल्कि उसने अपना आप हमें भी दे दिया। क्या हम उसकी जिंदगी जी सके। पौलुस रसूल इस तजर्बा को पता कैसे बयान करते हैं? वो कहते हैं अब मैं जिंदा न रहा, कौन जिंदा रहा? मसीह मुझ में जिंदा रहा। अब मेरे काम मुझ में जिंदा नहीं है, अब मसीह के काम है। अब यीशु मुझ में जिंदा है क्योंकि मेरा उठना बैठना मसीह जैसा है। अब मैं यीशु का सब मिजाज रखा हूँ, तो मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा रहा। और हमें हर रोज इस बात को तजर्बा करने की जरूरत है कि यीशु ने ना सिर्फ हमें हमारे लिए अपना आप दिया बल्कि उसने अपना आप हमें भी दे दिया ताकि हम उसकी मौजूदगी को तजर्बा करें, हम उसकी जिंदगी को जिए, हम उसके मुताबिक एक बेहतर एक फतेहमंद जिंदगी को गुजार सकें। तो यीशु का लहू सिर्फ हमें फराहमी नहीं देता, उसका लहू हमें हर तरह के गुनाह से पाक भी करता है और करता रहता है। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये होता रहता है। जितनी देर तक हम उसके लहू के नीचे रहते हैं हम पाक होते रहते हैं। तीसरी चीज डॉक्टर पॉल ब्रांड ने अपनी किताब में लिखी है वो ये है कि वो कहते हैं हमें ना सिर्फ खून की फराहमी की हर वक्त जरूरत है, ना सिर्फ हमें उसके खून के पाक और साफ करने की जरूरत है, बल्कि हमें खून की जो कॉन्करिंग पावर है, जो खून के अंदर फतेहमंदी की ताकत है, उसका भी दावा करना चाहिए। आपको पता है इंसानियत को सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से? इंसानियत को सबसे ज्यादा खतरा जब्बर जदल से नहीं है। आप शायद हैरान होंगे, इंसानियत को सबसे ज्यादा खतरा ये जंगली जानवरों से या दूसरे ममालिक एक दूसरे से नहीं है, ना ये बहुत बड़ी बड़ी एटमी ताकतों से इंसान को खतरा है। अगर इंसान को किसी चीज से ज्यादा खतरा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऐसी छोटी छोटी जिंदा रहने वाली चीजें जो आप देख नहीं सकते, आपकी फिजा में होंगी लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते। वो सबसे ज्यादा इंसान के दुश्मन है। 1348 में ब्लैक प्लेग के नाम से एक वबा आई और कुछ ही दिनों में यूरोप का 1/3 फिनिश। लोगों को समझ ही नहीं है कि हुआ क्या। चले हम इतना पीछे जाते हैं, 2019 के आगाज में आ जाते हैं। 2019 के नवंबर में चाइना के सिटी वुहान में एक वबा फैली कोरोना वायरस के नाम से और 1 से 1.5 साल में उसने 225 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया। और कोरोना वायरस समझ ही नहीं आ पाया कहाँ से फैला, कैसे फैला। कुछ कहते हैं लेबोरेटरी में सर्च हुई, कुछ कहते हैं उन्होंने जानबूझ के फैलाया और पता नहीं क्या क्या बातें। लेकिन ऑनेस्टली अभी तक कोई ऑथेंटिक रीजन समझ नहीं आई कि कोरोना कहाँ से आया। मैंने कहा इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन ये वायरस और बैक्टीरिया है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। मैं कोरोना की होने वाली जो तबाहियां हैं मैं उन पर रिसर्च कर रही थी, मुझे काफी टाइम लगा, बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च थी, लेकिन चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसलिए क्योंकि आप जाने कि एक वायरस इंसानियत के लिए कितना खतरनाक है। इन 1.5 से 2 सालों में 2021 के शुरू तक की रिपोर्ट है और वो ये है कि पूरी दुनिया में जो गुर्बत और बेइंसाफी है, इनइक्विटी, वो 31% बढ़ चुकी है सिर्फ एक वायरस की वजह से। दुनिया में बेइंसाफी और गुर्बत 31%, 31% बढ़ गई है सिर्फ किसकी वजह से? एक वायरस की वजह से, और वो है कोरोना वायरस जिसको हम देख भी नहीं पाते ऐसे। दूसरी चीज, बेरोजगारी बढ़ गई है 28%, माली और सियासी करप्शन बढ़ गई है 26% पूरी दुनिया में। उसके बाद जुर्म और तशद्दुद जो है खानदानों में, घरों में, ऑफिस में, जहाँ कहीं भी लोग हैं उनमें जुर्म और तशद्दुद 26% बढ़ गया। 28 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए, जिनके अपने कारोबार थे आज वो घर बैठे हैं सिर्फ किसकी वजह से? एक वायरस की वजह से। उसके बाद वो कहते हैं 160 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस दौरान स्कूल बंद किए और उनके 1.5 बिलियन बच्चे स्कूल से जो है वो तालीम से जो है वो महरूम रह गए क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद रहे और वो बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। ये प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में भी है। ये कोरोना वायरस के दिनों में जब स्कूल बंद रहे, बड़े बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया और वो जाते हैं। और माहिर तालीम का कहना है कि ये असर जो तालीम पर कोरोना वायरस ने जो असर किया है, ये आने वाली दहाइयों में भी, आने वाली दहाइयों में भी पूरी दुनिया इसका सामना करे। दुनिया को भुगतना पड़ेगा कि कोरोना वायरस ने इतना बुरा असर पैदा किया है। बहुत से लोग गरीब हुए, बहुत से लोग बेघर हुए, बड़े से
مسائل کا شکار, اپنوں سے جدا ہوئے, اور کتنے کیسز آئے, کتنی ڈیتھس ہیں, یہ تو بلینس میں ہیں کہ کتنے لوگ مر گئے, کتنے بیمار رہے. اور میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وائرس جس کو ہم اس فضا میں دیکھ نہیں سکتے, وہ انسانیت کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے. اب یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب بھی انسانی جسم میں کوئی وائرس گھستا ہے, کوئی بیکٹیریا گھستا ہے انسانی جسم کے اندر, تو خدا نے آپ کے خون کے اندر ایک پوری آرمی رکھی ہوئی ہے, ایک پوری فوج ہے جو اس وائرس کے ساتھ لڑتی ہے, اس وائرس کے ساتھ جنگ کرتی ہے, اس بیکٹیریا کے ساتھ. اور اس وائرس کے ساتھ لڑنے کے لیے جو آپ کے خون کے خلیے کام کرتے ہیں, ان کو وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں. سفید خلیے, پتہ نہیں اردو میں سفید ہی کہتے ہیں, میں نے اردو نہیں ہوگی. سو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو جنگ کرتے ہیں. ڈاکٹر پال بلڈ کہتے ہیں وہ 5 سے 6 قسم کے ہیں وائٹ بلڈ سیلز. جب آپ کے جسم میں وائرس گھستا ہے تو آپ کے خون کے وہ خلیے چاہتے ہیں پر حملہ کرتے ہیں, کوئی ہتھیار نہیں پکڑتے, چاہتے ہیں حملہ کرتے ہیں تاکہ ان کو ڈرا دیں, دبا دیں, اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جسم کا جو خون ہے بیچارہ ایسے ہی لاچار بیٹھا ہوا ہے. پھر ایک دستہ ایسا ہوتا ہے وائٹ بلڈ سیلز کا جو گولہ باری کرتا ہے, جو پراپر ہتھیاروں کے ساتھ ان کے ساتھ لڑتا ہے. اور پھر ایک اور ایسا دستہ ہے وائٹ بلڈ سیلز کا, اور میں پوری ریسرچ کے مطابق یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. پھر آپ کے خون کے اندر وائٹ بلڈ سیلز کے کچھ ایسے دستے ہیں جو اپنے پیچھے وائرس کو لگا کے پورے خون کے اندر گھومتے رہتے ہیں تاکہ ان کو گمراہ رکھیں, تاکہ وہ بیماری کو نہ پھیلا سکے. They do this. اور میں سمجھتی ہوں کہ خدا کی قدرت کتنی خوبصورت ہے. خون کے خلیے جسم میں آنے والے وائرس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے جسم کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے. کچھ خون کے خلیے وائٹ بلڈ سیل جیسے ہیں جو جا کر آپ کے وائٹل آرگنز کو سرمن دیتے ہیں, میسج دیتے ہیں, دل کو بتاتے ہیں, گردوں کو بتاتے ہیں, لنگس کو, پھیپھڑوں کو میسج دیتے ہیں کہ جسم میں وائرس آ گیا, تیاری کریں, جنگ کا وقت آ گیا. آپ کے باڈی میں جتنے وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ کتنی یونٹی کے ساتھ اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس وائرس کے ساتھ لڑنے کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ وائٹ بلڈ سیلز کیا کرتے ہیں, ان کو گھیر لیتے ہیں, وائرس کو, بیکٹیریا کو گھیرتے ہیں, اور جس طرح سے کسی کو باڑے میں بند کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے وہ لمف گلینڈز کے اندر وائرس اور بیکٹیریا کو گھسا دیتے ہیں, اور لمف گلینڈ ان کو گھیر کے مارتا ہے. اور یہ خدا نے سسٹم آپ کے خون کے اندر رکھا ہے. ہاللیلویا. میں چاہتی ہوں خدا کی قدرت کے لیے بہت زور ہے. ایک وائٹ بلڈ سیلز کے ساتھ ایک ہیلپر بھی ہوتا ہے جس کو اینٹی باڈیز کہتے ہیں. وہ اینٹی باڈیز آپ کے ان وائٹ بلڈ سیلز کو مدد دیتے ہیں جنگ کرنے میں. جب کوئی وائرس گھستا ہے تو آپ کے اینٹی باڈیز اسکین کرتے ہیں. پتہ مارکیٹس میں, ہاسپٹلس میں اسکینر ہوتے ہیں جہاں سے آپ کا سامان بھی گزرتا ہے اور آپ بھی گزرتے ہیں. ایگزیکٹلی اینٹی باڈی اسکینر ہوتے ہیں. اور ساگر بھائی آئی ہوپ میں ٹھیک ہی ریسرچ بتا رہی ہوں. سو وہ کیا کرتے ہیں, وہ وائرس کو اسکین کرتے ہیں, اور وائرس کو پتہ کیا کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے تم کس مقصد سے اس جسم میں گھسے ہو, ہمیں تمہاری جاب بھی پتہ ہے, تمہارا رینک بھی پتہ ہے, اور تمہارے لیڈر کا بھی پتہ ہے جس نے تمہیں بھیجا. ہم تمہارا کچھ سیکنڈ میں ستیہ ناش کر دیں. اینٹی باڈیز بھاگ کر چلتے ہیں, وائٹ بلڈ سیلز کو بتاتے ہیں جنگ کی تیاری کریں, وائرس جسم میں آ گئے. لیکن بڑی ایک افسوس کی بات ہے, آپ سوچ رہے ہوں گے اگر خدا نے انسانی جسم اتنی خوبصورتی سے پیدا کیا تو پھر یہ جسم کرونا وائرس سے کیوں نہیں لڑ سکا ہے نا. سوال تو بنتا ہے, اگر اتنی آرمی اندر بیٹھی ہے تو اس آرمی نے کرونا وائرس کا ستیہ ناش کیوں نہیں کیا. تو میرے جسم میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہماری باڈی جو ہے, ہمارا جو جسم میں خون ہے, وہ ان وائرس اور بیکٹیریا کے ساتھ لڑ سکتا ہے جن کو وہ جانتا ہے. جب باہر سے کوئی ان نون اور بالکل ایسا وائرس یا ایسا بیکٹیریا آئے گا جس کے بارے میں آپ کے جسم میں جو خون ہے اس نے کبھی سنا ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں, تو تب کیا ہوتا ہے جب کوئی ان نون وائرس, کوئی ایسا بیکٹیریا یا ایسا وائرس جس کا کبھی آپ نے خون نے سنا ہی نہیں, آپ کے خون نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, کبھی تجربہ نہیں کیا, تو کیا ہوگا کہ وہ وائرس کے آتے ہی جنگ کا اعلان کرے گا کہ جنگ ہونے والی ہے, وائرس آ گیا ہے. وہ لمف گلینڈز کے پاس جائے گا, وہ وائٹ بلڈ سیلز کے پاس جائے گا, سفید جو خلیے ہیں ہمارے خون کے جو جنگ کرتے ہیں ان کو بتائے گا کہ جنگ کی تیاری کریں. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. جب کوئی نیا وائرس آتا ہے تو آپ کے خون کو اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ وائرس کورونا کی طرح ڈینجرس ہے بہت زیادہ, تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ آپ کے خون کو لڑنے کے لیے وقت نہیں دے گا, اور ہو سکتا ہے انسانیت کی موت ہو جائے. اور اسی لیے بہت سے لوگ کورونا سے بچ نہیں پائے. اب
जब कोई अननोन वायरस या बैक्टीरिया जिसम में घुसता है तो मैंने कहा टाइम लगता है बदन को उसके साथ लड़ने के लिए, खून को उसके साथ लड़ने के लिए वक्त दरकार है। क्योंकि वो नया है तो कई दफा वक्त नहीं इतना होता कि उससे लड़ाई कर सके, तो बहुत से इंसान मर भी जाते हैं और यकीनन कोरोना वायरस से बहुत से लोग मरे भी। आपने परेशानी है ना, ये बायोलॉजी यीशु पे आके रुकेगी। अब हम लोग क्या करते हैं, सारे लोगों को नौकरियों पे, ड्यूटीज पे, स्कूल कॉलेजेस में वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर नहीं जाने दिया जा रहा। आपको एयरपोर्ट में भी नहीं घुसने दे रहे। क्यों? कि पहले क्या करवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। अब मैं आपको वैक्सीनेशन का थोड़ा सा मकसद बताती हूँ। जो इम्यूनाइजेशन होती है, जो वैक्सीनेशन होती है, वो क्या किया जाता है कि जिस बीमारी से आपकी वैक्सीनेशन करनी होती है उस बीमारी की कमजोर तरीन हालत, कौन सी हालत? कमजोर तरीन। जैसे कोरोना वायरस से आपकी वैक्सीनेशन हो रही है तो कोरोना वायरस की कमजोर तरीन हालत को आपके बदन में इंजेक्ट किया जाता है। आपके बदन में सोच लें वो बीमारी भेजी जाती है, होती वो कमजोर हालत में है। तो आपके खून को जब मैसेज मिलता है कि वायरस आया है तो वो, अच्छा, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है हमारे बदन में तकरीबन 25 बिलियन होते हैं। कितने होते हैं? और आपको पता है जब कोई वायरस जिस्म में आता है तो ये 25 बिलियन सेल्स 25,000 बिलियन बन जाते हैं। ये इतनी स्पीड से ग्रो करते हैं ताकि वो वायरस से लड़ सके। अब जब आपकी वैक्सीनेशन होती है तो आपके जिस्म में इंजेक्शन के जरिए, सिरिंज के जरिए वो बीमारी भेजी जाती है। तो आपका खून फिर क्या करता है, उसके साथ लड़ता है। चूंकि वो कमजोर हालत में होती है तो आपके जिस्म में और ज्यादा खून बनता है उस वायरस के साथ लड़ने के लिए। इसलिए कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के बाद बुखार भी रहता है कई दिन, क्योंकि आपका जिस्म उस वायरस के साथ लड़ता है। बहुत सारे एंटीबॉडीज बनते हैं और एक नई फौज बनती है उस वायरस के साथ लड़ने के लिए। आपके जिस्म में खुद ही वायरस भेजा जाता है ताकि आपके जिस्म के अंदर उस वायरस से लड़ने के लिए क्या पैदा हो सके, एक फौज पैदा हो सके। अब जो खून की फौज पैदा होती है ना, उसको बायोलॉजी की जुबान में वाइस ब्लड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाइस ब्लड, हिकमत वाला खून। क्यों हिकमत वाला? क्योंकि अब कोरोना आकर देखे जरा, अब कोरोना की धज्जियां उड़ाएंगे, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं, हम ट्रेंड हैं, हमारे पास फौज है, एंटीबॉडीज है, व्हाइट ब्लड सेल्स के 6 के 6 दस्ते हैं जो इस वायरस को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। तो आपको पता है हमारी रूहानी बीमारियों और वायरसेस से लड़ने के लिए हमारे पास कौन सा हिकमत वाला खून है? यीशु का लहू। ये यीशु का लहू है जो हमें हर तरह की रूहानी बीमारियों से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से बचाता है। जिन वायरसेस को, जिन बीमारियों को आप देख नहीं सकते, आप ईमानदार हैं, आप निजात याफ्ता हैं, लेकिन आप नहीं जानते कौन सा वायरस आपकी रूहानी जिंदगी को खा रहा है। लेकिन यीशु का लहू, वो जो हिकमत का खून है, अगर वो आपकी जिंदगी में है तो वो उस वायरस की धज्जियां उड़ा दे। और वो यीशु का लहू। इतनी लंबी कहानी इसलिए सुनाई कि जिस तरह से आपके जिस्म के अंदर वाइस ब्लड पैदा होता है, आपके यीशु ने मौत को भी लिया और फिर मौत पर फतह भी पाया। आपके यीशु ने गुनाह अपने ऊपर लिया और फिर रास्तबाज भी बना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक वाइस ब्लड था, हिकमत वाला खून था। और आज अगर हमें रूहानी बीमारियों, वायरस और बैक्टीरिया से बचना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके यीशु के लहू की जरूरत है। ये यीशु का लहू है जो आपको हर तरह के रूहानी वायरस से और बैक्टीरिया से बचाने की कुदरत रखता है। आमीन। यीशु के लहू के लिए एक दफा जोरदार। और दिलचस्प बात यह है कि इब्लीस के पास आपके यीशु के लहू के खिलाफ कोई हथियार नहीं है। वो बेबस है। जैसे वो बेगाना जुबान के आगे बेबस है ना, उसे समझ ही नहीं आती। आप बोले उन्हें नहीं पता चलेगा आप खुदा से क्या बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरह वो हर हथियार को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके पास हथियार ही नहीं है जो यीशु के खिलाफ लड़ सके, जो यीशु के लहू के खिलाफ लड़ सके। यीशु कहता है मैंने तुमसे ये बातें इसलिए की तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में दुख उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आऊं। यीशु आज ईमानदारों को ये हौसला देते हैं कि तुम अगर दुनिया में दुख उठाते हो, परेशानियों का सामना करते हो, तो ये बात हमेशा खातिर जमा रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। तो ईमानदारों, तुम भी दुनिया पर गालिब आओगे। वो वायरस जो दुनिया से आपकी जिंदगी में आते हैं, वो वायरस जो इब्लीस की तरफ से आते हैं, वो वायरस जो आपकी गुनाह भरी फितरत की तरफ से आते हैं, वो तमाम तरह के वायरसेस को, बैक्टीरिया को खत्म करने की कुदरत रखता है। और मुकाशवा की किताब में लिखा है और वो बर्रा के खून के वसीला से उस पर
गाली भाई किनके बारे में बात हो रही है? ईमानदारों के बारे में। आप और मैं अगर इब्लीस पर, इस दुनिया पर, इस जिस्मानी बदन पर अगर गाली गा सकते हैं तो वही की चीज आपको बर्रा का लहू है, वो वाइस ब्लड है जो हमें उस तमाम बीमारियों और वायरस और बैक्टीरिया से बचाने की कुदरत रखता है। हमें खुदा का शुक्र करना है कि खुदा तूने मुझे अपना लहू सिर्फ मेरे लिए सलीब पर नहीं बहाया, बल्कि तूने वो लहू मेरे साथ भी बांटा है। तूने वो लहू मेरे साथ बांटा है। उससे वो लहू बदन चाहता आप अपनी जिंदगी में लें और आप एक अच्छी और बेहतर और कसरत की जिंदगी का तजर्बा करें। उसने वो लहू हमारी फलाहमी के लिए दिया, उसने वो लहू हमें गुनाहों से पाक करने के लिए दिया, और फिर वो लहू उसने हमें गुनाहों पर फतह हासिल करने के लिए भी दिया है। और मैंने कहा इब्लीस के पास यीशु के लहू के खिलाफ कोई हथियार नहीं है। जब बच्ची से पूछा गया कि खुदा क्या नहीं कर सकता, तो उसने कहा कि जब यीशु का लहू मेरे ऊपर है तो खुदा मेरे गुनाहों को देख नहीं सकता। जब खुदा के गुनाहों को नहीं दे सकता तो इब्लीस आपको इल्जाम नहीं दे सकता कि आप गुनहगार। हालेलुया। नेपोलियन बहुत बड़े एक जनरल, मिलिट्री जनरल रहे हैं, हिस्ट्री में उनका बड़ा नाम है, और उसने फ्रांस को बहुत सारी फतूहात दी। वो बड़ा अजीम कौंसल था, बड़ा अजीम फाइटर था, जंगजू था, और उसका दिमाग बहुत तेज था। वो जहाँ जहाँ जाता था फतह हासिल करता था। तकरीबन आधे से ज्यादा यूरोप उन्होंने फतह कर दिया था। लेकिन एक दिन वाटरलू के मकाम पर वो ब्रिटिश आयल से शिकस्त खा गया। अब जब उसने इस जंग में शिकस्त खाई और बड़े बुरे तरीके से शिकस्त खाई, तो वो अपने दोस्तों के साथ चार्ट रूम में था, जहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आप यहाँ पे हमला करना, आप यहाँ पे, उसे चार्ट रूम कहते हैं। वो चार्ट रूम में खड़ा था, नीचे नक्शा बिछा हुआ था, उसके हाथ में पेन था, और वो नक्शे में बात कर रहा था कि मैं किन किन वजूहात से जंग में हारा हूँ। और वो नुक्ता जहाँ पर नेपोलियन और उसकी फौजों ने मार खाई, शिकस्त खाई, वो ब्रिटिश आयल का एरिया था, और उसके ऊपर जो निशान था वो रेड कलर का निशान था। और उसने पता है अपने सारे जनरल वगैरह उसके जितने असिस्टेंट थे उनसे क्या कहा, पेन की जेब को उसके ऊपर रख कर कहता अगर ये लाल निशान यहाँ पर ना होता तो मैं पूरी दुनिया को फतह कर दूं। आपको पता इब्लीस अपने चार्ट रूम में क्या कहता होगा? कहता जब से आदम और हवा ने गुनाह किया मैं फतह याद था, मैंने इंसानियत को सही मसला गुनाह में, मैंने गुनाहों की उनको बोझ तले सही दबा कर रखा। और वो कहता होगा चार्ट रूम में खड़े अपने सारे गिराए हुए फरिश्तों के साथ, सारी तस्वीरों बदबुओं जितने बाबे आपको मिलते हैं उन सब के साथ, और रेड पेन पकड़कर, अपना पेन पकड़कर कहता होगा ये जो कलवरी का पहाड़ है जिस पर सलीब बनी, जिस पर